राइट डाउन द सेकेंड सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो सेंटेंस हम दे रहे हैं वो तुम्हें थोड़ा सा पहचाना जाना पहचाना सा लगेगा, और वो हम जानबूझ के देते हैं। लिखना, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? क्या कोई कुछ पूछ रहा है? निधि, हाउ मेनी sentences have you made? Sir, I have made 3 sentences. Now I'm asking it to you again. How many sentences have you made with process? I have made 3 sentences with process. Mini, how many sentences have you made with process? I have made 3 sentences with process. Can you? I have made one sentence with successful. Come again, Rosni. I have made one sentence with process successfully. Yes. रोशनी, Roshni, आपने सफलतापूर्वक कितने वाक्य बना लिए? मैंने सफलतापूर्वक एक वाक्य बनाया, एक सेंटेंस बनाया था। ask this question to somebody else. नेहा, how many sentences have you made with process successful successfully? I have made 3 sentences with process successfully. नेहा, आपने सफलतापूर्वक कितने सेंटेंस बनाए हैं? निधि, मैंने सफलतापूर्वक 3 वाक्य बनाए हैं। I have to make this sentence. This sentence is belongs to present continuous tense. अगर बेटा It is बिलोंग का यूज कर रही तो बिलोंग के साथ फिर yeah. इज नहीं होता है। Uh, I have to make this sentence. This sentence is related to present continuous tense. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is. Thereafter, मम्मा, yes. मम्मा दूसरे पढ़ते दे दो। Thereafter, I will take the subject, and the subject is anybody. निधि, एनीवन क्यों ले रही है? Thereafter, Why why are you because taking it is anyone? question. Yes. So I'm taking anyone or anybody because it is question. That's why. Inverted. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is ask. Then I will add ing with the first form of the verb. I will I will put put ing. good. बस. I will put ing with first form of the verb. Is anybody asking? And lastly, I will take the object, and the object is anything. समथिंग नहीं रख सकते निधि यहाँ? No, sir, क्यों? because it समथिंग is कहाँ रखते हैं? affirmative sentences. में, sir. Yes. Sir, you told us. ये Lastly, दोबारा आ रहा है. ओके. one minute. क्वेश्चन मार्क. इट विल डू. लास्टली की जगह वहां फिर फाइनली बोल दिया करो, क्योंकि एक बार तो लास्टली बोल ही दिया है. फाइनली आई विल पुट क्वेश्चन मार्क. एक बार फिर उसी का अभ्यास करते हैं जिससे ये पक्का हो जाए. मिनी, इज एनीबडी आस्किंग एनीथिंग? Yes, sir. Anyone is asking and Sorry. anything. निधि, इज एनीवन आस्किंग एनीथिंग?
Yes, sir. Someone is asking something. निधि, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ सर, कोई कुछ पूछ रहा है. Meaning, is anybody asking anything? Yes, the someone is asking anything. Sorry, you could not listen carefully. Come again. Someone is asking something. So there you are. Meaning, कोई कुछ पूछ रहा है. हाँ दी, सॉरी फॉर कोई हिंदी. क्या कुछ पूछ रहा है तो. हाँ, sorry. Meaning, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ दी, कोई कुछ पूछ रहा है. रोशनी दी, is anyone asking anything? Yes, someone is asking anything. Sorry. Sorry, someone Come is again. asking. Someone is asking. Uh, somebody. Somebody is asking something. दी, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है. Is anyone asking anything? Yes, someone is asking something. निशा जी, क्या आपसे सॉरी, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है. नेहा, is anybody asking anything? Okay. Yes, someone is asking something. क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है. अब हम जो करने जा रहे हैं, अभी ये जो पूरा राउंड खेला अपन ने, ये एनी और सम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए खेला. अब नेहा रेस्ट है, तो नेहा ये सवाल हमसे करेगी, लेकिन इस बार हम प्रैक्टिकल आंसर देंगे. ध्यान से सुनिएगा. ये जो अपन प्रश्न उत्तर कर रहे थे, दे आर नॉट प्रैक्टिकल आंसर. और आपको प्रैक्टिकल आंसर देने के लिए अपने आप को, हम सबको एक परिवार का हिस्सा मानना पड़ेगा, एक काल्पनिक परिवार का हिस्सा. तो हम इसका सही उत्तर दे पाएंगे. नेहा, तुम हमसे पूछो, लेकिन हमारे प्रश्न में जो जवाब आएगा उसमें एक प्रश्न होगा, तुम्हें उसका जवाब देना होगा. अगर तुम नहीं दे पाए तो हम किसी और से पूछवाएंगे. पूछो हमसे. Sir, is anybody asking anything? Yes, दीदी, मम्मा इज आस्किंग वेयर इज पापाज मोबाइल. अब हमने इसको ऐसा मान लिया कि मैं छोटा सर, भाई. क्या कोई नहीं, अब तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा बेटा. निधि, तुम हमसे पूछो. Sir, is anybody asking anything? To you? नहीं नहीं, मत लगाओ कुछ. कम अगेन. Sir, is anybody asking anything? यस दीदी, दद्दू इज आस्किंग हैव यू मेड हिज टी. अब तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, तब तो हम जाके दद्दू को बताएंगे. Yes. I have made tea. गिव मी, आई विल गिव इट टू दद्दू. Okay, I will give. Here you are, बोलो. Here you are. थैंक यू दीदी, आई एम गिविंग इट टू दद्दू. अब प्रोसेस पूरी करो. तो इनको शायद समझ में आया, अगर नहीं आया होगा तो. Sir, क्या कोई कुछ पूछ रहा है?
हाँ दीदी, दद्दू पूछ रहे हैं आपने उनकी चाय बना दी कि नहीं? हाँ मैंने बना दी है। दीजिए, मैं उनको दे के आता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। अब ये वास्तविक बातचीत चल रही है यहाँ। आपको कल्पना करना होगा और फिर जवाब में आपको एक सवाल रखना होगा, क्योंकि कोई पूछ रहा है। निधि ने हमसे पूछा, कोई कुछ पूछ रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम निधि के छोटे भाई हैं, तो निधि को आवाज आई कि कोई आवाज दे रहा था। तो निधि ने पूछा, गुड्डू इधर आओ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? तो हमने बोला, हाँ दीदी, दद्दू पूछ रहे हैं उनकी चाय बनाई कि नहीं बनाई। कोई भी है, दद्दू है, पड़ोस के हैं या घर के बड़े हैं, कुछ भी, आपको एक कल्पना करना पड़ेगी। तो निधि ने जवाब दिया, हाँ चाय बना दी है। तो मैंने बोला, दो, मैं उनको दे आता हूं। अब हु इज रेडी? सर नाउ आई एम रेडी। दो आवाजें आई थी, एक ही आई थी, ठीक है। निधि, तुम्हें मन में पहले से एक प्रश्न बना के रखना पड़ेगा। रेडी ना? निधि, इज एनीबडी आस्किंग एनीथिंग? यस सर। someone is my सब्जेक्ट नहीं, रखना अब पड़ेगा समवन सर। समवन को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, उसकी हाँ। प्रैक्टिस तो हो गई। अब वास्तविक शब्द रखना पड़ेगा तुम्हें, जैसे हमने दद्दू रखा था। यस सर, मम्मा इज आस्किंग टू मी। नहीं, अगर वो तुमसे पूछ रही तो फिर हमारा कोई काम नहीं, वहां हमारा काम खत्म हो गया है। मम्मा इज आस्किंग वेयर डिड यू कीप माई मोबाइल। दीदी, आई केप्ट हर मोबाइल नियर द टेम्पल। ओके, आई विल टेक फ्रॉम ओवर देयर। ओके। निधि, क्या कोई पूछ रहा है? क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ सर। मम्मा मम्मा पूछ रही मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया है। मैंने उनका मोबाइल मंदिर के पास रख दिया था। ठीक है, मैं ले लूंगी। अब इतना Who में is भी ready? खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन प्रश्न करना पड़ेगा आपको। प्रश्न में भी एक प्रश्न और होगा, और बिल्कुल घर के सदस्य को मान के। चलो एक और हम छोटा सा उदाहरण देखते हैं। हम इसे पूछ लो निधि। Sir, is anybody asking anything? यस, गुप्ता मैडम इज आस्किंग वेयर इज योर होमवर्क कॉपी? My homework copy is on the नहीं, table. नहीं, तुम जवाब दो, मैं घर में भूल आई। चलो ठीक है, तुम्हारी आंसर। I have हाँ, I have forgot. आई हैव फॉरगॉटन। I have forgot. आई हैव फॉरगॉटन I have forgotten. At इट home, sir. इट एट होम। It at home. हाँ. I have forgotten it at home. अब हमने थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्कूल में मान लिया। मैं भी स्टूडेंट हूँ, निधि भी स्टूडेंट है, और गुप्ता मैडम पूछ रही है। ठीक है, तो अपन पूरा करते हैं। निधि, तुम सर, कोई हिंदी कुछ बोलो। पूछ रहा है। हाँ निधि, वो गुप्ता मैडम पूछ रही, तुम्हारी होमवर्क कॉपी कहाँ है? ओ, मैं घर में भूल आई। ओके, आई विल इन्फॉर्म हर। हु इज रेडी? So I'm ready. नेहा, इज एनीवन आस्किंग एनीथिंग? Yes, sir. My mom is asking, where is my earring? अब देखिए, जैसे नेहा ने माय मॉम लगाया,
तो हमें उससे क्या मतलब, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। डोंट वरी नेहा, आप ही की मम्मी है। भाई हमें क्या मतलब है, तुम्हारी मम्मी उनके इयररिंग्स तुमने हमें अलग कर दिया, तुम्हारी मम्मी पूछ रही हैं तो हम तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं भैया। Okay, yes, sir. Auntie is asking, where is my bag? My purse. विच आंटी इज आस्किंग? ये सब काल्पनिक चल रहा है। अब तुम एक ही सवाल तैयार करके नहीं रख सकती बेटा। हमने तुमसे पूछा क्या कोई कुछ पूछ रहा है, तुमने बोला हाँ आंटी पूछ रही हैं मेरा पर्स कहाँ है, तो हमने पूछ लिया विच आंटी। अब तुम हमें बताओ, तब बात आगे बढ़ेगी। Auntie is my mom friend. नेहा सर kept, you did not listen carefully. थोड़ा और सोचो। ना हो इज रेडी। Sir, I am ready. रोशनी, रोशनी दी, इज एनीबडी आस्किंग एनीथिंग? Yes, बाजू वाली aunty is asking when is mom? व्हेन हिज मॉम? When is mom? मॉम कब है? Sorry, it is बिल्कुल नहीं कहाँ working. गई है? मॉम कहाँ है? इट इज बिल्कुल नहीं वर्किंग। I repeat, Roshni, is anybody asking anything? Yes, बाजू वाली aunty is asking where is mom? अरे रोशनी, she went to जगराता. Please tell her. She was waiting for her, but she was not ready, so mom went to listen जगराता. चलो पूरा हिंदी करते हैं। रोशनी, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, बाजू वाली आंटी पूछ रही हैं मम्मी कहाँ है? अरे वो तो जगराता में गई हैं, वो इनका इंतजार कर रही थी, ये तैयार ही नहीं हुई तो वो चली गई। अच्छा था, बढ़िया। अब रोशनी तुम्हें बोलना पड़ेगा हु इज रेडी। Who is ready? I am ready. Okay, पूछो। Neha, after you. रोशनी पूछेगी ना। रोशनी अभी तुम फ्री नहीं हुई, अब तुम्हें पूछना है। Who is ready? अच्छा निशा जी? नहीं, हाँ हाँ तुम पूछो पूछो। निशा जी, is anybody? निशा नहीं, मिनी मिनी ने बोला है। अच्छा, मिनी ने। मिनी, is anybody asking anything? yes दी, विराट is asking where is my notebook? अब तुम्हें बताना पड़ेगा रोशनी। विराट नोटबुक? नहीं, तुम ऐसा भी उत्तर दे सकती हो, आई डोंट नो, ऐसा भी तो बोल सकती है। मिनी, आई डोंट नो। बस। अब हिंदी कर लो पूरे। दी, मिनी, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं यार, हिंदी को बेइज्जत मत करो यार, देख लो। मिनी, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ दी, विराट पूछ रहा है मेरी नोटबुक कहाँ है? मुझे नहीं पता। चलो, आई एम रेडी। सर, is anybody asking anything? यस, साहू जी इज आस्किंग कैन आई टेक वन गुड़हल का फूल फ्रॉम
द गार्डन। तो इसका आंसर कैसे देना है? तुमने हमें आवाज दी यस सर। कि सर कोई कुछ पूछ रहा है कि तुम्हें भी आवाज आई। हमने बोला हाँ साहू जी पूछ रहे हैं क्या मैं गार्डन से एक गुड़हल का फूल ले सकता हूँ, अब तुम बताओ। यस सर। यस सर साहू नहीं सर, देखो सर तो तुम्हें सोचना ही नहीं है यहाँ पे। तुम लोग काल्पनिक स्थिति तो बना ही नहीं पा रहे हो ना। अब देखो हमने बाहर के चैप्टर में नहीं गए, हमने जो चैप्टर, फिर से पूछ लो तुम चाहो तो। सर, इज एनीबडी आस्किंग एनीथिंग? यस, साहू जी इज आस्किंग कैन आई टेक वन गुड़हल का फूल फ्रॉम द गार्डन। यस, यू टूक। हम नहीं पूछ रहे भाई, साहू यस जी साहू पूछ जी। रहे। नहीं तो अब साहू जी तुम्हारे सामने थोड़ी है, तुम तो ऊपर बालकनी में खड़ी हो, सीढ़ी से पूछ रही हो, तुम्हें आवाज आई कि कोई आया है, कुछ कुछ पूछ रहा है। तो तुमने पूछा क्यों बेटा गुड्डू क्या हो गया, कौन आया है, क्या पूछ रहा है। तो हमने बताया दीदी वो साहू जी आए हैं, बोल रहे गुड़हल का फूल ले सकते हैं क्या गार्डन से। तो तुम क्या जवाब दोगी? हाँ ले सकते हैं। अरे तो बेटा इंग्लिश सीखने के लिए इतने पैसे दे रही हो, हिंदी में थोड़ी जवाब दोगी। Is anyone asking anything? यस निधि, साहू जी इज आस्किंग कैन आई टेक सम गुड़हल के फूल फ्रॉम द गार्डन। Okay. He can take. बस खत्म। सर क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ साहू जी आए हैं, पूछ रहे हैं क्या बगीचे से कुछ गुड़हल के फूल ले सकते हैं क्या वो। हाँ ले सकते हैं फिर। ओके थैंक यू दीदी। अब हमने जाके उनको बता दिया साहू जी प्लीज टेक गुड़हल के फूल, यू कैन टेक। जाके हमने उनको बता दिया। अब उत्तर बहुत कठिन तो नहीं था बेटा, बिल्कुल ही कठिन नहीं था, लेकिन उस स्थिति को समझ के उत्तर देना है। हमने कैन चैप्टर का यूज किया था जानबूझ के, क्योंकि तुम लोग बी चैप्टर रख रहे थे, हमने कैन रख दिया। चलो सर इज एनीबडी आस्किंग एनीथिंग? हाँ दीदी, पापा इज आस्किंग इज पुदीना की चटनी रेडी। Tell him keep patience. I will tell sometime after some time. नाइस, कंप्लीट द प्रोसेस। Can I ask? सर कोई कुछ पूछ सिंधी रहा है? हाँ पापा पूछ रहे हैं क्या पुदीना की चटनी तैयार है। Sir, I अरे am उन्हें बता दो, धीरज रखे। Nidhi Didi, ask me question. बेटा पूछो, खुश हो गई तो Okay. बहुत ज्यादा। रोशनी, is anybody asking anything? Yes, she is asking what will dress up in married. वह हिंदी कर दूं सर? बेटा ग्रामर की दृष्टि से सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट बस लगा तो सही हो जाएगा। She is asking, वह पूछ रही है। हाँ रखा है सब्जेक्ट? नहीं, अगले वाले में नहीं है ना। वह पूछ रही है कि शादी में क्या पहनोगी, वॉट विल ड्रेस अप इन मैरिड। किससे पूछ रही है, कोई तो पहनने वाला रखो उसमें। तुमने वॉट रख दिया, विल रख दिया, ड्रेस अप वर्ब रख दी, सब्जेक्ट तो कुछ रखे ही नहीं ना बेटा। To whom she asking? She is asking what will you dress up in married. हाँ लेकिन रोशनी ये गलत हो गया, वो तुमसे पूछ रही है, इसमें निधि का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ऐसा प्रश्न सोच के रखना होगा जिसमें निधि का भी कोई रोल हो। तो अब इसको ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो निधि से पूछ रही है, तो निधि तुम्हें एक जवाब और देना पड़ेगा। बताओ व्हाट विल यू ड्रेस अप इन द पार्टी। I will dress up लहंगा in the party. रोशनी, पूरा क्या ही कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ
हाँ निधि दीदी, वह पूछ रही है कि तुम शादी में क्या पहनोगी। मूवी में शादी में पार्टी में है ना। हु इज रेडी? बेटा रोशनी, यहाँ हमने तुम्हारी वर्ब स्वीकार तो कर ली, लेकिन यहाँ ड्रेसअप नहीं आता है। यहाँ वेयर ही रेडी। आएगा, WEAR, ओके वेयर। निशा। वेयर ही आएगा, यहाँ पे ड्रेसअप नहीं आएगा। वेयर, व्हाट विल यू वेयर फॉर ओके द निशा। पार्टी। Sir, अब रोशनी, is anybody asking anything? यस मम्मी, सब्जी वाला इज आस्किंग विल यू टेक मूली, ओनली 2 मूलीज आर रेस्ट, he will give only in 5 rupees. Okay, purchase. Good. He is अब हिंदी he is करो। offering. नाइस नाइस, गुड। हिंदी करो। क्या कोई कुछ, हाँ क्या क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ मम्मी, सब्जी वाला पूछ रहा है मूली लोगी, 2 मूली बची हैं, 5 रुपए में दे देगा। हाँ ठीक है, खरीद लीजिए। गुड। बल्कि तुम्हें उत्तर थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच के देना चाहिए कि हम बार बार इशारा कर रहे, तुम लोग के उत्तर इसलिए सही नहीं हो रहे कि तुम लोग परिवार का सदस्य मान के नहीं चल रहे। अब हमने सीधे तुम्हें मम्मा बोला, तुम बालकनी में खड़ी हो, नीचे सब्जी वाला खड़ा है, ठीक है। मम्मा ने बोला बेटा गुड्डू, आलू और प्याज ले आओ 1-1 किलो, ठीक है। अब हमने आलू और प्याज ले लिए, इतने में कुछ तुम्हें आवाज आई, मम्मी को ऊपर से आवाज आई, तो मम्मी ने पूछा बेटा गुड्डू, कोई कुछ पूछ रहा हो है का। तो हमने बताया हाँ मम्मी, जो सब्जी वाला पूछ रहा है कि 2 मूली बची हैं, 5 रुपए में दे देगा, ले ले का। तो मम्मी ने हाँ बेटा ले लो। अब तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था, ओके बेटा टेक इट। ये सही आंसर है ना। तो जब तक तुम कल्पना नहीं करोगे तो वो सही उत्तर नहीं आए। इसलिए थोड़ा सा जो भी पूछ रहा है उसको परिवार का सदस्य मान के चलो। वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, ननद मान लो, जेठानी मान लो, बिटिया मान लो, पापा मान लो, कोई भी पूछ रहा है, लेकिन वो तुम्हारे परिवार का सदस्य है। और वो इसलिए तुमसे पूछ रहा है क्योंकि उसको भी वो आवाज सुनाई दी। ऐसा सब समझ रहे हो ना, पूरा ऐसा कल्पना करना पड़ेगा तुम्हें। अब हमने ये जो कल्पना की निशा, ये रोज की बात है ना, कि भाई सब्जी वाला आता है, कुछ ना कुछ बोलता है, पूछता है, फिर तुम बोलते हो जा बेटा धनिया ले आओ, जा मिर्ची ले आओ, उससे बोलते होगी, या किस किराने की दुकान पे बेचती होगी कुछ भी। खैर किराने की दुकान तो दूर है, वहां से आवाज नहीं आएगी, लेकिन सब्जी वाला तो सामने आके खड़ा हो जाता है ना, या हो जाती है सब्जी वाली। अब हो सकता है गांव में वो सिर पे रख के सब्जी लाती हो, या कुछ भी कल्पना कर लो, उसमें क्या है। Who is ready? Now I am ready, sir. Nidhi, is anyone asking anything? Yes, Papa. Postman has came, and he is giving one lifafa. So what should I do? Firstly, ask is it prepaid or postpaid? Okay, I will ask. अब तुम पूछो, फिर हमें जवाब दो। अब तुमने उससे पूछ लिया मान लो, हाँ अब 2 में से कोई एक पापा, जवाब। it is prepaid. हाँ सर, टेक इट। जब पैसे दे दिए हैं तो फिर ले लो, टेक इट। पोस्ट पेड होता तो भैया अपने को सोचना पड़ता। But he is saying please sign here. So what should हाँ I do? okay, give me, I'm just coming, I will sign, I'm just coming,
से हिम टू वेट फॉर 2 minutes। बात तो बहुत आगे भी अभी अपन बढ़ा सकते, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। पूरा हिंदी करें क्या? बच्चों की समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, अच्छा, कर ही लेते हैं चलो कर लो। और अच्छे से आ जाए। हम्म। इट्स क्या योर कोई गो। कुछ पूछ रहा है बेटा निधि? पापा, वो पोस्टमैन आया है, वो एक लिफाफा दे रहा मुझे। उससे पूछो प्रीपेड है कि पोस्टपेड है। वो कह रहा प्रीपेड है, मैं क्या हाँ तो करूं? ले लो, हाँ तो ले लो। कह रहा है कि साइन कर दो। ओके ओके, आई एम जस्ट, मैं 2 मिनट में आता हूँ। उससे बोलना थोड़ा वेट कर ले, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। ओके ये ओके। हो गई बातचीत। निधि और दीदी, आई एम रेडी। हाँ, रोशनी, इज एनीबॉडी आस्किंग एनीथिंग? यस, मॉम, पापा इज आस्किंग, विल यू गो टू शिमला? No, I will not go to Simla because it is very cold. Winter season is going on. That's why I will not go. I will go in summer season. कोई कुछ पूछ रहा है रोशनी? हाँ दीदी, हाँ हाँ मम्मा। सॉरी, आई पापा एम मम्मी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ मम्मी, पापा पूछ रहे हैं शिमला घूमने चलोगी? नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। सर्दियां चल रही हैं, गर्मियों में जाऊंगी। देखो हाउ इज रोशनी, रेडी? धीरे धीरे बनने लगा ना। तुमने फ्यूचर सिंपल यूज किया, फ्यूचर सिंपल सबको पता है। चैप्टर में पहले सोच लो कि हमें क्या प्रश्न बनाना है, और घर का बिल्कुल घर की स्थिति रखो। अब कितना बढ़िया प्रश्न किया तुमने। हाँ मम्मा पापा पूछ रहे हैं शिमला चलोगी? तो मम्मा ने भी उत्तर दे दिया, नहीं भैया इतनी ठंड में कौन पकड़ा जाता है शिमला, गर्मियों में चलेंगे। अब इतना तो अभी नहीं बोल पाएंगे अपन, लेकिन जितना बोल सकते हो उतना बोल दो। दोस्तों अब एक काम करते, डोंट वरी, हम इजाजत लेते हैं। तुम लोग थोड़ी देर तक अगर और कंटिन्यू करना है करो, और नहीं तो अभी से लेकर कल 7 बजे तक अच्छे से सोचो, कुछ कुछ डायलॉग सोचो। लेकिन याद रखो तुम्हें भी प्रश्न बनाना है, प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न करना है, और घर के किसी सदस्य को रखना है। या जैसे हमने सब्जी वाला रख दिया, निधि ने पोस्टमैन रख दिया, जो घर पे आया हो। जैसे हमने साहू जी रखा था, भाई साहू जी फूल मांगने आए। तो ऐसा तो होता ही है हमारे घर में, कोई भी स्थिति को हम फिर से कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, नेहा देख चुकी है और निधि को भी मालूम है, नेहा इस क्लास में आ चुकी है। ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है बेटा परिकल्पना। तो जब तक कल्पना की उड़ान नहीं भरोगे, रियल इंग्लिश नहीं निकलेगी। फिर हम सेंटेंस ही बोलते रहेंगे। जैसे हम निबंध याद करते आते थे ना, कब का निबंध 27 याद कर सालों लिया, से। एप्लीकेशन याद कर ली, याद करते रहे हमेशा। अब ये इतना सा वार्तालाप है, इसमें एक प्रश्न हो रहा है, और आपको घर के किसी सदस्य का रूप ग्रहण करना है, और दूसरा सदस्य पूछ रहा है। कई चीजें हो सकती हैं, हमें कम करेंगे। तुम लोग एक चीज, एक हिंट दे देते हैं। अक्सर कोई ना कोई पूछता है कि पापा पूछ रहा है रिमोट कहाँ है, बड़े भैया पूछ रहे हैं गाड़ी की चाबी कहाँ है। ऐसे कुछ सेंटेंस बना के रखो, कोई ना कोई कुछ पूछता ही है ना। या जैसे मिनी दीदी जीजा जी के साथ रहती है, तो मिनी रख सकती थी, हाँ दीदी जीजा जी पूछ रहे हैं कि वो वाली फाइल कहाँ है। कुछ भी रख दो। रिमोट कहाँ है, तो वो उनने बोला रिमोट। अब रिमोट कहाँ है क्या, ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते। गाड़ी की चाबी कहाँ है, हाँ पापा पूछ रहे हैं मेरी नीली शर्ट कहाँ है ना। कुछ भी रखो, घर का सेंटेंस रखो, और वह व्यक्ति बदलते जाओ,
और फिर दूसरे आंसर में कोई बाहर का व्यक्ति ले आओ, पड़ोसी ले आओ, साहू जी ले आओ, सब्जी वाला, पोस्टमैन, दूध वाला, कुछ भी उसको वो पूछ रहा है ये, क्यों ऐसा सेंटेंस बना सकते हो ना। हाँ वो दूध वाला पूछ रहा है आज कितना दूध देना है। ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर हमने दिया है तुम लोग को, चैप्टर के हिसाब से सोचो, उसमें चैप्टर भी रखो, तो कुछ सेंटेंस अभी बनाओ, सोचो। And WH word is also you give answer. हाउ मच, तो थोड़ा सोचो कि दो लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक प्रश्न कर रहा है और दूसरा भी प्रश्न कर रहा है और उसके बीच में तुम हो। चलो तुम लोग चाहो तो कंटिन्यू करो। आई एम लिविंग, साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। हाँ सर एक्चुअली कोई भी वो क्वेश्चन करेगा व्हाट्सएप में तो हम लोग उसका फिर आंसर भेजेंगे बना के सर। हाँ व्हाट्सएप में भी दे दो, व्हाट्सएप में करते जाओ, वेरी गुड। व्हाट्सएप में करो, जो गलत होगा हम उसको बताते जाएंगे और फिर कल क्लास के दौरान फिर उसी को कर लेना, जो सही हो जाएगा। ये भी ठीक है, व्हाट्सएप में लिख के भेजते जाओ, सेम सेंटेंस लिख के भेजो तो कोई पूछ लेगा। हो सकता है 2-3 लोग पूछ लें, 4 लोग पूछ लें, तो कोशिश करो कि इसका भी आंसर दे दो, उसका भी दे दो, जितना दे सकते हो उतना दे दो। बढ़िया, ये भी अच्छा है ना। नेहा अभी 10 मिनट के लिए अभी कहीं नहीं जाना, 10 मिनट के लिए अभी क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। ओके, यू हैव नॉट टू गो। यस, जय बात।